آج کی اس بریف ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ریئل میں ایک گیم چینجر ہے، اور گیم چینجر ہے تو کیسے. ہم اس کے پراسپیکٹس اور اس کی اپرچونٹیز کی بات کریں گے. بنیادی طور پہ ہم لانگ ٹرم جو پلان ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے جو انڈر ٹونز ہیں، جو اس کا جو بلو پرنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ایک بریف سا آپ کو ریکیپ دوں گا میں آج کی اس ویڈیو میں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں کیا کیا شامل ہے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے پروسیڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیو اسٹریٹجک کمپوزیشن اور سلک روڈ کے ساتھ یہ انٹیگریٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. بی آر آئی کے لیکچر میں آپ نے دیکھا سلک روڈ اکنامک بیلٹ اور میری ٹائم سلک روڈ دونوں کو یہ انٹیگریٹ کرتا ہے. چائنا اس کے تھرو سینٹرل ایشین ریپبلکس کو اور ورٹیکل انٹیگریشن اور ہاریزنٹل انٹیگریشن، لیٹرل انٹیگریشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے. ورلڈ مارکیٹس، یورپین مارکیٹس کو ایکسس کرنا چاہ رہا ہے. میڈل ایسٹرن اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو نیچرل ریزروز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ان تک چائنا جو ہے وہ ایکسس چاہتا ہے. یہ چائنا کا اسٹریٹجک انٹینٹ ہے. سی پیک کا جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے سمجھنے ضروری ہیں. یہ وہ ایریاز آف کوآپریشن ہیں کہ جن کے اوپر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے کہ ہم ان ایریاز کو ٹچ کریں گے. فرسٹ از کنیکٹیوٹی تھرو بلڈنگ انفراسٹرکچر فار انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم، جس میں پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کے تقریباً تمام ڈومینز میں کام ہو رہا ہے. اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف ڈیجیٹل کوریڈور، ڈیجیٹل کوریڈور میں آئی ٹی اور آئی سی ٹی کے سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے. انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، ٹریڈ اور انڈسٹریل پارکس ہیں، ایگریکلچر اور پاورٹی ایلیویشن کے فرنٹ پہ کام ہے، ٹوریزم ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہے، اور اوشن اکانومی کے اوپر کام ہے جس میں گوادر پورٹ اور بہت ساری جو پورٹس ہیں ان کے اوپر کام شامل ہے. کوآپریشن ان ڈیفرنٹ ایریاز، جس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو لائیولیہڈ کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا. دونوں سٹیٹس کے درمیان فائنینشل کوآپریشن اور بارڈر مینجمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. سی پیک کی ٹائم لائنز کے حساب سے بات کریں تو تین اس کی جو ٹائم لائنز ہیں، شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں، کچھ مڈ ٹرم ہے اور کچھ لانگ ٹرم ہے. یہ ان کی ٹائم لائن گیون ہے. سی پیک کے اسپیشل لے آؤٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ اگر دیکھیں یہاں پر تو جو اس کا ناردرن اینگل ہے، یہ جو پارٹ ہے جس میں چائنا کا زنجیانگ وغیرہ بھی آتا ہے اور پاکستان کا گلگت کا ایریا ہے، یہ انڈسٹری کا زون ہے، لاجسٹکس کا اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا زون ہے. یہ آپ کو جو دوسرا آپ کو جو زون نظر آ رہا ہے جو گلگت میں ہے اور پارٹلی کے پی میں ہے، یہ ناردرن پاکستان کا زون ہے جس میں بارڈر، لاجسٹک چینلز، ریسورس ایکسپلوریشن اور ایکولوجیکل کنزرویشن جو ہے وہ اس ایریا میں فوکس ہے. سینٹرل پاکستان کا یہ جو آپ کو زون نظر آ رہا ہے اس میں انڈسٹریل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس ہے. جو ویسٹرن پاکستان کا یہ زون نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں لاجسٹیکل چینل، منرل ایکسپلوریشن اور ایکولوجیکل کنزرویشن ٹارگٹ ہے. اور سدرن پاکستان کا یہ جو زون ہے اس میں انرجی، لاجسٹکس، ٹریڈ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹیز کو ایکسپلور کیا جائے گا. یہاں پہ آپ کو ہائی وے نیٹ ورک آف سی پیک جو ہے وہ نظر آ جائے گا. ایگزسٹنگ ہائی ویز جو کنسٹرکٹ کی جائیں گی، جو پریورٹی پروجیکٹس ہیں اور جو شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں، یہ آپ کو ڈفرنٹ جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں. فار انسٹنس یہ جو آپ کو سینٹرل زون میں نظر آ رہا ہے یہ ہائی وے کے پریورٹی پروجیکٹس ہیں. اور یہاں پر بھی جو گلگت بلتستان سے آپ انٹر ہو رہے ہیں کاشغر میں، تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے انڈر ہائی ویز کا ایک انٹیگریٹڈ نیٹ ورک موجود ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک ایسٹرن اس کا پارٹ ہے اور ایک اس کا ویسٹرن پارٹ ہے. تو اس کے تین ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جو کہ اکراس پاکستان رن کرتے ہیں. ہائی ویز اور موٹر ویز کے نیٹ ورک کے تھرو سارے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ریجنل کنیکٹیوٹی کے کانٹیکس میں ہی اگر میں بات کروں تو ریجنل کنیکٹیوٹی کو کیسے انشور کرتا ہے، آپ دیکھیں ML1، ML2 اور ML3 ریلوے نیٹ ورکس ہیں. اور دیکھیں اگر آپ تو یہ ML1 فار انسٹنس دیکھیں، کراچی سے لے کر روڑی، امروکا، لاہور، واگا سے لے کر حویلیاں تک جو ہے وہ یہ کنیکٹ کرتا ہے راولپنڈی کو. جو ML2 ہے وہ کنیکٹ کرے گی پشاور کو ڈی آئی ہان کے ساتھ، وہاں سے جیکب آباد اور جیکب آباد سے کراچی. اور جو ML3 ہے وہ اگر آپ دیکھیں یہ کنیکٹ کرے گی تفتان کو چمن، کوئٹہ، جیکب آباد کو کوئٹہ، وہاں سے زوب، زوب سے ہوتے ہوئے ڈی آئی ہان. تو یہ آپ کو ایک انٹیگریٹڈ نیٹ ورک نظر آ رہا ہے. سی پیک اینڈ ریجنل کنیکٹیوٹی میں کون کون سی ڈومینز ہیں کنیکٹیوٹی کی جن کے اوپر کام کیا جائے گا؟ The first one is
इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम किया जाएगा, डिजिटल सेक्टर, एकेडमिक कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान, एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ट्रांसपोर्टेशन। इन डिफरेंट डोमेन्स को हम वन बाय वन देखेंगे। फॉर इंस्टेंस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट के ऊपर जब मैं सोर्स मेंशन करता चलूं, आज की जो स्लाइड्स हैं और जो लेक्चर जो प्रिपेयर किया गया है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असगर जो कि कंसल्टेंट रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के और जो नेस्ट के फॉर्मर रेक्टर रहे हैं, उनका जो काम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आज की स्लाइड्स बनाने में उनसे हेल्प ली गई है। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाईवेज का सेक्टर है, एविएशन का सेक्टर है, रेजिलियंस मॉनिटरिंग और लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है, अर्थ साइंसेज और डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन है, रेलवेज और मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, जीआईएस और आरएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, शिपिंग्स हैं, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स हैं, टनलिंग एंड ब्रिजिंग। तो ये वो सेक्टर्स हैं कि जिनमें ये दोनों ममालिक सीपेक के अंडर कोऑपरेट कर रहे होंगे। एनर्जी के फ्रंट पे फॉर इंस्टेंस अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं या डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं, डाटा साइंसेज, एनर्जी एनालिटिक्स में काम है, रिन्यूएबल एनर्जी की डोमेन में काम किया जाएगा या कोऑपरेट कर रहे हैं ये दोनों कंट्रीज। सस्टेनेबल डिमांड और कंजम्पशन मैनेजमेंट के ऊपर इन दोनों ने काम करना है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की एफर्ट है। एनर्जी इकोनॉमिक्स और एनर्जी मैनेजमेंट के सेक्टर में दोनों ने कोऑपरेट करना है, और एनर्जी लॉजिस्टिक्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट के सेक्टर में ये दोनों कोऑपरेट करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टोटल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो 9 एस्टेब्लिश किए जाने हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीरपुर में है, पेशावर में है, जीबी, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कोयटा। यहाँ पर आप उनकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जीबी, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोयटा और कराची। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी लोकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स में काम किया जाएगा, मींस प्रेफरेबल सेक्टर्स जो कि इन जोन्स में बेस्ड होंगे, या इन जोन्स में जो इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरीज लगेंगी वो कौन सी लगेंगी। मसलन गिलगित में अगर आप देखें तो मार्बल, ग्रेनाइट है, आयरन ओर प्रोसेसिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग है, स्टील इंडस्ट्री है। मोहम्मद में ऑन कंप्लीशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, ये अभी इसकी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। राशाकाई में फ्रूट, फूड, पैकेजिंग, टेक्सटाइल वगैरह। मीरपुर में भी एक लगना है। फैसलाबाद में टेक्सटाइल, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, इन डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑपरेशन है। तो ये जो डिटेल्स हैं वो आप इन स्लाइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने है। इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर और पॉवर्टी एलिविएशन के फ्रंट के ऊपर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट डोमेन्स में इन दोनों ने कोऑपरेट करना है, और उनमें प्री हार्वेस्ट इनपुट्स की डोमेन है, और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉजिस्टिक्स का इशू है, मार्केटिंग का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स का इशू है, कल्टीवेशन मैनेजमेंट का इशू है, इरिगेशन नेटवर्क्स के इश्यूज हैं, या फिर कैनाल्स की चैनलिंग और लाइनिंग के इश्यूज हैं। ये सारे एग्रीकल्चरल जो डोमेन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंडर कवर किए गए हैं, जिसमें पॉलिसी से लेकर वेटरनरी और एनिमल साइंसेज, जो आपका पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक का सेक्टर है, उसको भी कवर किया गया है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट लार्जर नेशनल लेवल पे, फूड सिक्योरिटी को कवर करने की भी बात की गई है। ये हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की। इसमें फिर जो फार्मर्स से रिलेटेड उनकी सोशल फैब्रिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्टडीज हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोलिक्स की स्टडीज, जो नए जो डैम्स हैं या जो नए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, ये सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, लॉन्ग टर्म प्लान में ये सारी बातें एनविजाज की गई हैं या फोर्सी की गई हैं। अब ये किस हद तक रियलाइज होती हैं ये तो 2030 तक ही पता चलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम उन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, उन एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेट करता है। कोस्टल टूरिज्म डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पोर्ट्स जो है वो डेवलप की जानी है। जिवानी की पोर्ट है, ग्वादर की पोर्ट है, पसनी की पोर्ट है, उरमारा की पोर्ट है, सोनमियानी की पोर्ट है और केटी बंदर की पोर्ट है। तो ये टोटल जो 5 पोर्ट्स हैं ये कोस्टल डेवलपमेंट की जो डोमेन है उसके अंडर इन्होंने डेवलप करने हैं दोनों ने।
इसी तरह से टूरिज्म के फ्रंट के ऊपर और ओशन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, उसमें इन दोनों ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में कोऑपरेट करने के लिए ये ब्लूप्रिंट LTP लॉन्ग टर्म प्लान की सूरत में जो इन्होंने एनविजाज किया है, उसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, कोस्टल टूरिज्म और रिजॉर्ट्स की बिल्डिंग है, नेवल आर्किटेक्चर और शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग की जो कराची में जो फैसिलिटीज हैं उनकी इन्हेंसमेंट है, उनकी डेवलपमेंट है और इस सेक्टर में कोऑपरेशन है। ओशन एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन एक और सेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शिपिंग एंड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है ओशन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सूरत में, वहां पर ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन में और उनकी एक्सप्लॉयटेशन में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट एक्सटेंड करेगा लॉन्ग टर्म प्लान के अंडर। इसी तरह से अगर पीपल्स की लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सोशल सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए सीपेक के लॉन्ग टर्म प्लान के अंडर चाइना और पाकिस्तान ने कोऑपरेशन के लिए ये एक ब्लूप्रिंट LTP की सूरत में तय किया है, जिसमें मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स होंगे, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट होंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, फॉरेंसिक साइंसेज में, मेगा सिटी सर्विसेज, इसके अलावा अर्बन और रीजनल प्लानिंग में और मुख्तलिफ सेक्टर्स लाइक लिबरल आर्ट्स और इकोनॉमी, सेफ सिटी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज एंड सिक्योरिटी, इन तमाम फील्ड्स में इन्होंने कॉपरेशन करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान में 2030 तक जो है वो अपने टारगेट्स सेट किए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल कोऑपरेशन की सूरत में पाकिस्तान में चाइना जो है वो अपनी करेंसी युआन को एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे जो है वो लॉन्च करना चाह रहा है। मींस जो चाइनीज करेंसी है रेनमिनबी के थ्रू आप ट्रेड कर सकें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ताकि रेनमिनबी को भी वही हैसियत हासिल हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में जो कि डॉलर को हासिल है या फिर जो कि यूरो को हासिल है। मींस करेंसी को आप जो है वो ट्रेड में एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। ये चाइना का टारगेट है, बिकॉज चाइना अगले कुछ सालों में प्रोजेक्टेड है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसी तरह से चाइना जो है वो अपनी करेंसी को भी उसी लेवल के ऊपर लाना चाह रहा है, और उसके लिए जो फर्स्ट मार्केट जहां पर ये लॉन्च की जाएगी डेफिनेटली वो पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्क होंगे, या BRI में वो कंट्रीज जहां पर के चाइना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिटिक्स और डेटाबेस की सेटलमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ग्वादर का फ्री ट्रेड जोन इसके एस्टेब्लिशमेंट है, कंसेशंस के ऊपर पाकिस्तान को लोन्स देना है, फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है, मुख्तलिफ कंट्रीज में प्रॉपर्टी और डिफरेंट सेक्टर्स में, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, ताकि उन कंट्रीज की जो GDP ग्रोथ है उसको बूस्ट किया जा सके और चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वहां से रिटर्न्स को रीप कर सके। ये चाइना का टारगेट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर, जो कि पाकिस्तान और चाइनीज दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो अब तक की बहस से हम इस नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रियल सेंस में एक गेम चेंजर है, और दोनों कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान को इसको वार फुटिंग के ऊपर परस्यू करना चाहिए ताकि 2030 तक हम अपने तमाम जो सीपेक के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रियलाइज कर सकें और उनसे जो है वो बेनिफिट्स रीप कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।